पंजाब में जहरीली शराब से 17 की मौत, मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई। ये घटना पंजाब में 3 साल से चौथी बड़ी जहरीली शराब त्रासदी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस त्रासदी के बाद मजीठा का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और साथ ही परिवार के बच्चों की पढ़ाई और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने का वादा भी किया। दुखदायक घटना घटी कि जहरीली शराब पीण नाल हुण तक जो साडे कोल रिपोर्ट 17 ਦੇ करीब अणहोईਆਂ मौतां होईਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ 5, ਹਰੀਏਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਮਾਊ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੇਨ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੱਕ 600 ਲੀਟਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਥੇਨੋਲ ਸੀ, 600 ਲੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਮੈਥੇਨੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ 17 ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲकुल नाल खड़ांगे परिवार दे। रोहिणी सेक्टर 18 में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। उत्तरी बाहरी दिल्ली के बादली थाना क्षेत्र में आज शाम एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। रोहिणी सेक्टर 18 स्थित बादली मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक पर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अंधाधुंध गोलियां बरसाई और भीड़भाड़ वाले इलाके में घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस को शाम करीब 6:30 बजे PCR कॉल के जरिए घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां खून से लथपथ हालत में चंदन झा नामक 20 वर्षीय युवक बेसुध अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने तुरंत घायल चंदन को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो पकड़ लिया जी। अभी ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में जो आदमी के जो डेथ हुआ है, हाँ जी, उसका हम चेक कर रहे हैं क्या डिटेल्स है। बेसिकली हमारा प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो
इनको जो मारा है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इनका कुछ पुराना झगड़ा या कुछ है जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन में जब आगे जब मिलेंगे डिटेल आपको और बताएंगे। सर कितनी गोलियां लगी थी? अभी वो डॉक्टर्स के पास हम चेक कर रहे हैं। इनको एक्चुअली एक स्टैब इंजरी और गन शॉट्स भी। तो सर अगर बात यहाँ युवक की करते हैं तो आइडेंटिफाई किया हुआ कहाँ रहता है, क्या कार्य करता था ये? हाँ, वो आइडेंटिफाई हमारा किया है। तो वी आर चेकिंग द एज एंड ऑल, ये जुवेनाइल है कि नहीं। इसके बाद जो भी कार्रवाई जो भी पता चल जाएगी डिटेल्स हमको। सर अगर बात करते हैं 24 घंटे के, तो आउटर नॉर्थ के अंदर 24 घंटे में दूसरा ये क्राइम है। एक पहला बवाना के अंदर कल रात को हुआ था जो चाकू वगैरह मारे थे, दूसरा ये है। तो 24 घंटे के अंदर जो बवाना वाला इंसिडेंट है उसमें हमने एक्यूज को पकड़ लिया। और ये जो अभी डिटेल ये केस है, इसमें अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इनको जो सस्पेक्टेड लोग हैं, इनको ये जो विक्टिम को जानता है, तो इनका कुछ इश्यू पहले से चल रहा है। थैंक यू सर। दुश्मनी बना सीमापुरी में स्नैचर्स को पकड़ने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बहादुरी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर देंगे बधाई। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने जान की परवाह किए बिना 2 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया जो सोने की चैन स्नैचिंग कर भाग रहे थे। एडिशनल सीपी ट्रैफिक जोन मोनिका भारद्वाज ने बताया कि सूचना मिलने पर 2 बदमाश यामा बाइक पर सवार होकर चेतक मार्केट से राहुल नामक व्यक्ति से सोने की चैन छीनकर भाग रहे थे। जब वे चिंतामणि चौक के पास पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस के एसआई संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों में से एक ने फायरिंग की लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। इसके बावजूद पुलिसकर्मी और आम लोगों की मदद से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी जल्दी इन पुलिसकर्मियों से मिलकर उन्हें उनकी बहादुरी के लिए बधाई दे सकते हैं। हमारे 2 ट्रैफिक पर्सनल, सब इंस्पेक्टर संजीव और कांस्टेबल राहुल नैन, ये दोनों चिंतामणि रेड लाइट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दोनों यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो एक पब्लिक पर्सन ने, जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, शिवा ठाकुर उनका नाम है, उन्होंने भागते हुए आए और हमारे दोनों लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पीछे कुछ लोग स्नैचिंग करके भाग रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। इतनी ही देर में वो मोटरसाइकिल जो सस्पेक्टेड थी दोनों एक्यूज्ड के साथ, वो भी वहाँ पर चिंतामणि चौक की तरफ आ गई जहाँ ये लोग ड्यूटी पॉइंट इनका था। इनको बता दिया गया था कि वो हथियारबंद हैं दोनों, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी से दोनों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाने की कोशिश करी। उस कोशिश में उन्होंने इमरान, एक एक्यूज जिसका नाम बाद में पता चला इमरान है, इमरान ने हमारे एसआई संजीव पर फायरिंग कर दी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली इनको नहीं लगी। और मीनवाइल जो कांस्टेबल राहुल नैन थे, उन्होंने जो उसका साथी था, इमरान का साथी वारिस, उसको और पार कर लिया। बाद में सिचुएशन जब वहाँ पर थोड़ी और बढ़ी तो लोकल लोगों ने भी आकर मदद की, लोकल पुलिस से भी लोग आ गए। और उसके बाद जब सारा वाकया पता किया गया तो ये दोनों जो मुलजिम थे, ये पास में एक चौक है, वहाँ पर दिलशाद गार्डन का चेतक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहाँ के परवीन सोनी रहने वाले हैं। उन्होंने 3 चेन पहनी हुई थी जो कि छीनकर ये लोग भाग रहे थे। और जब किसी जो हमारे पब्लिक पर्सन थे, शिवा ठाकुर या किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश करी तो उनको पिस्टल दिखाई है और उन्होंने कहा है कि दूर हट जाओ, हमारा पीछा मत करो। लेकिन फिर भी इसमें हम जो श्री शिवा ठाकुर हैं उनकी बहादुरी का भी हम लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने निर्भीकता से उनका पीछा किया और आकर संजीव और राहुल नैन को बताया। और इनमें भी संजीव और राहुल नैन ने भी अपनी एकदम वीरता का परिचय देते हुए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास कोई हथियार नहीं होता है जब वो ड्यूटी पे रहते हैं, बावजूद ये जानने के कि वो हथियारबंद हैं, इन लोगों ने पूरी निर्भीकता से उनका सामना किया। क्योंकि ऐसे लोग आगे जाकर भी पब्लिक को और नुकसान पहुंचा सकते थे, किसी पर फायरिंग भी हो सकती थी और स्नैचिंग तो उनको करनी ही थी। हम सबको पता है कि जब वो निकलते हैं तो एक स्नैचिंग तो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बहादुर अपने तरीके से उनको रोका है, बहुत वीरता का परिचय दिया है, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
और ये हमारी ट्रैफिक की शान है। एसआई संजीव के बारे में मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि इनको पहले भी 3 असाधारण कार्य पुरस्कार और 1 OTP मिल चुका है और ये भी उनका एक बहुत ही डिजर्विंग इंस्टेंस है, जिसके लिए आगे भी उनको सूटेबल रिवॉर्ड के लिए हम लोग PHQ को रिक्वेस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।